السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل لاک ڈاؤن ژوٗرِم مرحلہ یہ جاری تتہ آز تہ وادی مز لاک ڈاؤن اثر وچھنہ آمت تو جنوبی کشیر ہندس ضلع کۄلگوم اننت ناگ پلووم تو وسطی کشیر ہندس ضلع سرینگر گاندربل تو بڈگامس سان شمالی کشیر ہندس ضلع بنڈپور ورمل تو کپوٲرِس مز انتظامیہ طرف عائد کرنے آمتن بنچن تو پابندین ہند اثر آز تہ وچھنہ آمت یتھ دوران کارباری ادارہ بند تو سڑکن پہ گاڑین ہند ین گژھن تہ متاثر وچھنہ آو یدوے لاک ڈاؤن ژورُک میعاد ختم سپدنس نزدیک تتہ ذرائعو پہ وننہٕ آمت زِ لاک ڈاؤنس مز ہیکہ مزید 2 ہفتن ہند توسیع سپدِتھ ییٚلہِ زن بعض شہرن مز لاک ڈاؤنس دوران نرمی ہز تہ وۄمید چھِ یہ کتھ باون لائق زِ ییٚتہِ اکہ طرفہٕ بندشو تو پابندیو کِنۍ عام لوٗکھ مشکلن مز ہینہٕ چھِ آمٕتۍ تتہِ چھُ کورونا وائرس متٲثر لوٗکن ہندِس بڑوٕنِس تعداد نظرِ تل تھٲوِتھ مرکزی تو ریاستی سرکار سنجیدہ قدم تُلنٕچ کوشش کران یُتھ زن لوٗکن ہٕنٛز حفاظت تہِ یقینی بناونہٕ یِیہِ واریاہ کاپریٹ گورمنٹس یہ تمو ونیُک تام وون گۄڈنِکِس لاک ڈاونس دٔیمِس ترٛیٚیمِس وۄنۍ ژوٗرِم تہِ مۄکلُن حظ مگر اَسہِ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ باقین سٹیٹن منٛز چھِ راحت تِتھ کٔنۍ چھنہٕ اَسہِ کینٛہہ کیازکہِ أسۍ ہٮ۪کو مان ژٕ صُبحن یا شامن ہٮ۪کو أسۍ پنُن یہِ تھوڑا کٲم چلٲیِتھ کیازِ لُکن تہِ گٔے وۄنۍ واریاہ سختی تِمن تہِ روٗد نہٕ کانٛہہ یُس تِم زینان ٲسۍ کانٛہہ ذٔریعہٕ اوس تِمن گٔے واریاہ سختی وۄنۍ تِمن کینٛہہ مان ژٕ کینٛہہ پوٗجا ووٗجا جمع ٲس تِمو مۄکلٲو سۄ نۄمن مان ژٕ ژۄن یہِ مرحلہٕ آیہِ اَسہِ ژۄنوٕنی مرحلن منٛز مۄکلیو تِمن بِچارن وۄنۍ چھُنہٕ تِمن مان ژٕ کانٛہہ سہارا جہاں یہ مزدور ہے جو دن کو کماتا تھا ہمارے ڈرائیور ہے ٹرانسپورٹر ہے جو بھی ہے یہ کنڈکٹر ہے آٹو والا ہے وینڈر ہے جو بھی ہے سب دن کو کماتے تھے شام کو کھاتے تھے مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ یہاں کی کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمارے بارے میں ہم مجبور ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی نکلے جب ہمارے پاس کچھ رہا ہی نہیں گھروں میں بیٹھ کر ہم کہاں سے کمائیں گے ہم کیا کھائیں گے ہم اپنے عیال کو کیا دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے جیسے ہماری زندگی چلے عام انسان بیمار پریشان مزدور پریشان ہر ایک طبقہ پریشانی حال ہے ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ہم ایل جی مرمو سے اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم اس کی طرف دھیان دے کشمیر کی طرف دھیان دے یہاں زیادہ ریڈ زون بھی نہیں دہلی میں جتنے پازیٹیو کیس آئے ہیں یہاں تو ویسے حالت نہیں ہے ویسے وہاں پھر بھی وہاں کھل گئے انڈسٹریز کھل گئے شاپ کھل گئے مال کھل گئے باقی چیز کھل گئی یہاں کیوں بین ہے کیا ہمارے ساتھ کیوں سوتیلی ماں کا سلوک کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ ہمارے ساتھ دیکھا جائے کہ یہاں کیسے گائیڈ لائن دی جائے کم سے کم ہم بھی دن کو کما سکے شام کو کھا سکیں جنوبی کشیر ہندس اننت ناگ قصبس مز لاک ڈاؤن زمینی سترس پہ عملاؤن باپت فورسز اہلکارن ہز ہریمان چھکہ انتظامیہ طرف تعینات کرنا آمت تتہ آز انتظامیہ طرف قصبس مز باضابطہ پٲٹھۍ اعلان کرنا آمت یتھ دوران دکاندارن تنبیہ کرنا آو زِ تم گژھن انتظامی کس حکم نامس پہ عمل کرن یُتھ زن تمن خلاف کاروٲیی عملہِ مز اننہٕ یی दुकानदारों से कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंत नागन आज कोकरनाग इलाक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा मुख्तलिफ महकमन हंद जिम्मेदार मौजूद दौरस दौरान ये तिमो मौजूद सूरत हाल हवाल करना आमतन इंतजाम हज साम हज तत तिमो लूकन अपील कर्म तिम गसन इंतजामिया अथवास कर युथ जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने यी दूसरे दिन ही हम शीर हमदान साइड में थे आज हमने इस साइड में दिया बराकपुरा हो गया खजीवारा हो गया दूनी पावा हो गया अब यहाँ अशबल में यहाँ पहुँचे पूरा सवेरे से हम लगे हैं देख रहे हैं लोगों को एजुकेट कर रहे हैं लोगों को गुजारिश कर रहे हैं समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो अभी तक हमें ज़्यादा सख्ती नहीं बरत रहे हैं इनके साथ हालांकि हमने तो दुकानदारों की कानूनी सब्र की लेकिन इसके बावजूद भी हम समझ सकते हैं उनको कुछ फैटिग दिया कुछ थकावट दिया 2 महीने से लोग तंग भी आ गए गरीबी लॉकडाउन की वजह से लेकिन हमें बर्दाश्त तो करना है नहीं ये सेक्शन 144 तो ऑलरेडी इन प्लेस था ये तो इसको कभी हटाया नहीं गया था जब से कोरोना वायरस था ये इन प्लेस था
तो इसको अब लोग वक्तन फवक्तन इसका डाइल्यूशन हो चुकी थी, इसको ताज़ा दम करने के लिए दोबारा री इम्प्लीमेंट किया, ताकि हमने आपने देखा माइक पे, गाड़ियों पे, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को अनाउंसमेंट करवाई पूरी रोड पे। आपने देखा कि दफ़ा 144 का दोबारा नाफिज याद दहानी के लिए क्या, अदरवाइज यार कोताही होगी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी। अब ये तो लोगों ने करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पहुँच पाई, पुलिस हर घर के सामने तो पुलिस नहीं लगाई जा सकती। वादी मज ये क्वारंटाइन सेंटरन मज मौजूद लूको तरफ शिकायत बावान वन इंतजामिया तरफ क्वारंटाइन सेंटरन मज माकूल इंतजाम करना आमत तब आज श्रीनगर किस TRC ग्राउंडस मज कायम करना आमत क्वारंटाइन सेंटर जायज हेन पत इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आमद यम लूक पन्निस खर्चस पे क्वारंटाइन मुद्दत पूरा कर यसन तिहद बापत माकूल इंतजाम करना आमत युत जन तम मर्जी मुताबिक मुद्दत पूरा करित हेकन। ब्रेकफास्ट वो दे रहे हैं, उसके बाद जो मर्जी वो खाए ले तो से लाइक दिस। अभी आज यहाँ पे जो हमने मीटिंग बुलाई थी, ये बेसिकली हम रोज़ रिव्यू करते रहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं और जो सॉल्यूशंस सामने आ जाते हैं लोगों की डिमांड पे या एक्सपीरियंस पे, तो उन्हीं का रिव्यू होता रहता। आज भी यही था कि जैसे अभी लोग आ रहे हैं, एयर आ रहे हैं या रोड आ रहे हैं, तो मेन फोकस था कि उनको जो एकोमोडेशन अब दे रहे हैं हम वो किस पैटर्न पे दे देंगे। तो आपको तो पता है कि पहली प्रायोरिटी ये है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्टल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, NITs हैं, जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं, उनको हम क्लासिफाई कर दिए हैं फ्री एकोमोडेशन और फ्री फूड। तो वो फर्स्ट चॉइस होती है किसी को भी कि ये हमारे पास जगह है, ये फैसिलिटी दे सकते हैं, ये फ्री है। फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, फिर क्लासिफिकेशन हो गई। अभी जैसे मुख्तलिफ होटल हैं, आपको पता है बुलवाड़ पे जो होटल हैं या राजबाग में जो होटल हैं, जो पहली कैटेगरी गई थी वो 900 रुपये पर पर्सन था और 400 रुपये का फूड था। अब उससे नीचे भी एक कैटेगरी के होटल्स हम सामने आए जिन्होंने ऑफ़र दिया कि ठीक है हमारा होटल थोड़ा छोटे ही हैं, तो दे सेट के 600 रुपया पर पर्सन, तो उसमें वो पर रूम ही ले सकता है। लेकिन अगर वो 2 बंदे बैठेंगे तो वो 800 रुपये हो जाए, 400 रुपये ही बनेगा एक बंदे को एक नाइट का, और 400 रुपये का वही फूड पैटर्न रहेगा। तो कैटेगरी 2 वो हो गई। उसके बाद कैटेगरी 3 है कि किसी और स्टैंडर्ड होटल ने नेगोशिएट करके मिनिमम बोला कि मैं 3500 रुपये दूंगा और ब्रेकफास्ट फ्री दे दूंगा। सो 3500 रुपये एक और कैटेगरी आ गई। उसके बाद एक और कैटेगरी सामने आई है, दैट इज़ हाई एंड, जो हमारे ताज विवांता हैं या ललित ग्रैंड पैलेस हैं, उनमें 7000 हो गया विद ब्रेकफास्ट फ्री। सो ऐसा है कि वाइड रेंज है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 400 रुपीज़ अप टू 7000 रुपीज़ एंड फ्री ऑल्सो। सो वही थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए कि लोगों की आसानी के लिए ये ऑप्शन हम देंगे आज से इनको कि कैसे आगे जाना। वादी मज ये डॉक्टरन सत ज्यादती हंदिस मामलस हवाले डॉक्टरों तरफ एहतजाजी मुजाहरे तक आई। तब टंगमर्ग मज आज पुलिस तरफ महकमे सेहत के एहलकारन सत तालमेल मजबूत बनावनस हवाले कदम तुलना आमत। यथ दौरान ड्यूटी पे इन वालन डॉक्टरन पोश दित इस्तकबाल करना आव। यह अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आव दशवे महकम मौजूदा सूरत हालस दौरान चुकसान फरज अंजाम दिवान, ताहम खामी दूर करने जरूरत। जो इस वक्त यहाँ SSDPO साहब हैं, SHO साहब हैं, इनके साथ भी पिछले 2-2.5 महीने से हम काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक। सो वी हैव बीन कोऑपरेटिंग वेरी वेल। जहाँ हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है हमारे साथ ये शाना बशाना फील्ड में आते हैं, जहाँ इनको हमारी ज़रूरत पड़ती है हम इनके साथ शाना बशाना अलॉन्ग विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, SDM साहब आते हैं, तहसीलदार साहब और बाकी जो BDO साहबान वगैरह, वी आर ऑल वर्किंग एज ए टीम एंड वेन एवर वी वर्क एज ए टीम देन ओनली वी विल अचीव सक्सेस। मैसेज यही है कि जब भी अब आपको लगे कहीं मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी तो उसको क्लियर करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ मतलब भड़कने। इसके बेटर है थोड़ा सब्र से काम लें। आपके ऑफिसर्स हैं, सपोज अगर मेरे वर्कर को कुछ लग रहा है वो मेरे पास आए, इनके वर्कर को हमारी तरफ से कुछ लग रहा है वो इनके पास जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें, क्योंकि जब वो ऑफिसर के पास जाएंगे वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर। इस तरह भड़कने से कोई काम। कोरोना वायरस ब्रोकुन इन सत वादी मज कया शोब मुतासर सपद तब पश्मीना सनत सत वाबस्त दस्तकार ते मुश्किलन मज हेन आमत। वादी इंदो दस्तकारों तरफ वन आमद नामसद हालातों तो मौजूद सूरत हाल सत यह सनत सठई मुतासर सपजम तो इंतजामिया तरफ यमन लूकन हिंद मुश्किल नजर तल थवित कह कदम तुलना आमुत। यह जन यमो लूको तरफ मांग करना आई अत सनत कुन गि जोन दुन युत जन लछवाद लूकन हुंद रोजगार मुतासर सपदे। यह कत बावन लायक ये अत काम पोचर दिन बाबत इंतजामिया तरफ बड़ दाव कर तब जदीद दौरस मज साइनस बढ़वन तरक्की सत
ات کامہ ست وابستہ لوک آولینس مز تہ ہنہ آمت पंद्रह 16 साल से ये हो रहा है कि अचानक एक मशीनें नमूदार हो गई डेयरिंग के नाम पर, किसी और के नाम पर। आहिस्ता 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 उसने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। उसके बाद जो हमारे क्राफ्ट से वाबस्तगी जितने भी आर्टिजन्स थे वो ख़राब होते जा रहे, जिसकी वजह से सब लोगों ने उसको मशीन का माल मार्केट में लिया, जो कि दर हकीकत में वो जो शॉल्स है जो मशीन से बनते हैं वो शॉल असल में शॉल नहीं है, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल जो होता है वो ख़राब हो जाता है। मशीन से वो मायाक्रम नहीं रहता है उसका। और इसमें सबसे पहली इफ़ेक्ट हुआ जिसमें वो है औरत हमारी माँ बहनें जो कताई करती थी, वो कम से कम लाखों में है, अभी भी है लेकिन अभी बहुत कम है। साहब जो भी है अभी हमारा गवर्नमेंट चलाने वाले इदारे जितने भी हैं, हम उसे अपील करते हैं कि कम से कम फौरी तौर पर कोई राहत वाहगुजार कर लीजिए, ताकि ये कम से कम अपना खुद कुछ करें, ताकि इनका जो महीने या साल का ये कम से कम अपने घरों में जो काम है वो कम से कम ही सही लेकिन खड़ा करें। और दूसरी बात सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि अभी स्कूलों में से हमारे को कॉल आ रही है कि फ़ीस भर दीजिए। एक तरफ से हम पूरे पेट लेकर पत्थर बांध के हम घरों में बैठ के हैं, कोई हमारा सजवाब नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ से कम फ़ीस माफ़ कर दिया तमाम आर्टिज़नों को, जो भी आर्टिज़न है, चाहे नमदाज है, कृवाला, जो भी आर्टिज़न है शहरी कश्मीर का, पूरे वादी कश्मीर का, उसको कम से कम ये ख़त्म कर दे, फ़ीस ख़त्म कर दे। और पूरी फास्ट ट्रैक पर कम से कम इनको ऐसा ये कर लीजिए ताकि इनका कम से कम काम चालू हो जाए। और काम करने के बाद इसका जो पश्मीना का जो भी ये बन जाएगा, पीस बन जाएंगे, शॉल्स बन जाएंगे, कम से कम उसके लिए ये होना चाहिए क्या बोले एम्पोरियम या हैंडलूम या इनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, वो हमारा माल उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये मुख्तलिफ रियासतन मज दरमाद लूकन हिज घर वापसी हवाले कदम तुलना आई, तज आज अनंतनागस मज गैर रियासती बाशिंदों तरफ खामोश एहतजाज करना आमुत। यह दौरान एहतजाज में शामिल लोग घर वापसी हिज मंग करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ ये घर वापसी हिज मंग करना आई, तज वन आमुत मौजूद सूरत हाल दौरान तिमन सठा मुश्किल वेतरिन पेवान तो इंतजामिया तरफ तीन मुश्किल दूर करने बाबत कह कदम तुलना आमुत। सर यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली है मेरा। सर इधर हम काम करने आए थे करीबन सर हम घर जाना चाहते हैं। सर ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम हमको जम्मू तक पहुँचा दीजिए, फिर उसके आगे हम या साधन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं पैदल चले जाएंगे। सर हम बहुत मजबूर हैं, करीब 2.5-3 महीने हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप बच्चे और सब परेशान हैं। सर हमारा क्वारंटीन सर 2.5 महीने से ऊपर हो रहा है स्कूल में। हम इधर मटन स्कूल में हैं। तो प्रशासन से सर हमारी ये डिमांड है कि हमको सर कम से कम नहीं तो जम्मू तक छोड़ दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट डोडा से बोल रहे हैं 5 महीने इधर बंद हो गए, न खाने के लिए कुछ, न पीने के लिए कुछ। 1000 रुपये टोटली बचे हमारे पास। अब डीसी ऑफिस में उधर उधर अच्छा बल में गए थे तहसीलदार के पास, उसने बोला डीसी साहब के पास जाओ, उसी आपको परमिशन मिलेगा। अब यहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, कुछ नहीं। घर जाना चाहते हैं हम, जिला रायबरेली के रहने वाले, हमको घर जाना चाहते हैं, हमको किसी तरह जम्मू तक पहुँचाना चाहिए। तो क्या है प्रशासन से आपकी ये डिमांड? घर जाने के लिए। क्वारंटीन पीरियड खत्म हो गया आपका? हाँ आपका हमारा खत्म हो गया, 3 महीने होने चाहते हैं। तो काम नहीं यहाँ पे कर रहा? यहाँ नहीं है काम, क्या करेंगे, कोई काम नहीं मिला। मौजूद सूरत हाल दौरान ये इंतजामिया तरफ मुकामी लूकन सत गैर रियासती बाशिंदन हिंद बापत माकूल इंतजाम करने आमत। तज आज कपवारिस मज इंतजामिया तरफ गैर रियासती बाशिंदन मज मुफ्त राशन बगरन आमुत। अत मौके पे ये गैर रियासती बाशिंदों तरफ इंतजामिया शुक्रिया अदा करना आव। तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी, युद्ध जन लूकन मुश्किल वेतरन पेन।
मेरा नाम तबस्सुम है, हम बिजनौर के रहने वाले हैं। हमें यहाँ पे राशन मिला है, नहीं पैसे वैसे कुछ नहीं देने हैं। हम लॉकडाउन से बहुत परेशान हैं। हम जिला बिजनौर से हैं, यहाँ रहते हैं कुपवाड़ा में। हमें यहाँ राशन मिला है, फ्री मिला है। हम यहाँ पे परेशान हैं, हम जितने भी हमारे यहाँ के उन सबको ये लाभ मिलना चाहिए। ये सही बात है कि ये आज ही नहीं, इससे पहले भी हम इनको चावल और दाल दिया करते थे थ्रू लेबर डिपार्टमेंट। अब यहाँ एक हमें नया ऑर्डर इशू हुआ है जिसके तहत हमें मतलब डायरेक्टर फूड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनको इनके घरों तक ही पहुँचा रहे हैं। इनको इसमें 5 kg राइस और 1 kg पल्स पर फैमिली में रहे हैं। तो हमने आज यहाँ इनिशिएट किया है, हमारा एम है रगीपुर और बाकी इलाकों में ये कंटिन्यू रहे। कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत ये इंतजामिया सत रजाकार तंजीमों तरफ लूकन राहत वातनावनस हवाले कदम तुलना आई। तज आज रायहार त्रालस मज अकि मुकामी रजाकार तंजीम तरफ लूकन मज मुफ्त राशन बगरन आमुत। ये जन तंजीम हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव जो मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युद्ध जन ज्यादा को ज्यादा लूकन राहत वाते। जब से कोविड-19 स्टार्ट हो गया है तो तब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। क्वारंटीन सेंटर्स में खाने का और फ्यूमिगेशन का हर इलाके में हमने फ्यूमिगेशन की है। और अभी जो फूड किट्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री, तो हम हर एक इलाके में पहुंचना चाहते हैं। और आज 3 ऑर्गेनाइजेशन ने हमने कोलैबोरेशन किया है। एक हमारा जो अंसारुल मसाकिन ट्रस्ट है, एक अलहुदा है, अलहुदा पुलवामा, और ये खदमत फाउंडेशन। तो हम 3 ऑर्गेनाइजेशन ने ये कोलैबोरेशन किया है। 100 किट्स लेके आए हैं और ये त्राल से इतना ज़्यादा दूर है। अभी हम जाड़ी हार इसको बोलते हैं, एक गुजर बस्ती है जाड़ी हार, और नारस्तान के लिए लेके आए हैं, और माछामा के लिए। ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं फार फलांग यहाँ पे जो दूर है गुजर बस्तियाँ, वहाँ पर हम लेके आए फूड किट्स। तो आगे भी हम चाहते हैं कि और भी ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेशन करें आपस में, तो काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत ये ISM तरफ कई कदम तुलने आमुत। तज आज वर्मलिस मज महकमा उमूर सारिफीन कन मुलाजिमन मज जरूरी दवा बगरन आमुत। ये जन अत मौकस पर जिम्मेदारों तरफ वन आव जे ISM तरफ रोज ये प्रोग्राम जारी युद्ध जन फ्रंट लाइन पे काम करने वाले लोगन हिंद हिफाजत यकीनी बनाने। आप अपने आप तो प्लीज टेक प्रिकॉशन। आप लोग की गाड़ियां आती हैं और पिछले 2 महीने से हम लोग आयुष डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब तारिक साहब से ये मसला उठाया कि आपका जो डिपार्टमेंट है फ्रंट लाइन डिपार्टमेंट है, आपको दवाई की बहुत ज़रूरत है। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ ये प्रोग्राम किया। और ये दवाई जो कि हमारे फ्रंट लाइन स्टोर कीपर्स हैं, एपी शॉप डीलर्स हैं, हमारे TSO साहब हैं जिनको पूरा पब्लिक के साथ ही वाबस्ता है, और डायरेक्ट इनको क्वारंटाइन सेंटर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। बहुत पुराना है, 2 महीने से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके अंडर में हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर मोहन सिंह जी के अंडर में यहाँ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमारा डिपार्टमेंट हर तरह से इन्वॉल्व है। शुरू से मेड भी मैन पावर, हमने अपना सारा जो मैन पावर है वो लगाया था क्वारंटाइन सेंटर्स में, और हर जगह क्वारंटाइन मेंटेन कर रहे हैं, और सर्विलेंस में अब तक भी चल रहा है। इवन ईद के दिन भी हमारे डॉक्टर सर्विलेंस में थे। 2 महीने से हर जगह, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, हर पुलिस स्टेशन पे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में, क्वारंटाइन सेंटर्स पे इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अभी तक कोई मौसर दवा इसके लिए तैयार नहीं हुई है कोविड-19 के लिए। इन हालात में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आयुष मिनिस्ट्री का डायरेक्टिव है कि हम ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करें कॉमन मैसेज को और फ्रंट लाइन वर्कर्स को खास तौर से, ताकि लोगों की इम्यूनिटी, लोगों की फ्रंट लाइन वर्क। अनंतनाग सोमू स्टैंड सत वाबस्त ट्रांसपोर्टरों तरफ आज खामोश एहतजाज करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल ट्रांसपोर्टर इंसाफ फराहम करने मंग कराने। ट्रांसपोर्टरों तरफ वन आमुत युद्ध 5 अगस्त पे वादी हिंद ट्रांसपोर्टर मुश्किल मज हेन आमुत, ताहम इंतजामिया तरफ तीन मुश्किल दूर करने बापत कह कदम तुलने। ट्रांसपोर्टरों तरफ मंग करना आमुत वादी हिंदन ट्रांसपोर्टरन हवाले गसन संजीद कदम तुलने युद्ध जन तिहद मुश्किल दूर करने। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसल मसले पत्मो अगस्त पे आए इग्नोर कर ट्रांसपोर्ट बंद
जबरदस्त गुरबत आए मदद कर मदद कर खुदायन वह पैकेज क्या मोदी साहबन वोनमुत यम आय न ट्रांसपोर्टस दिन कहें तज आए हर वक्त इग्नोर कर लिहाजा कर गवर्नमेंटस अपील कर क्या भरपूर मदद कर ट्रांसपोर्टस। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे मसले के बारे में हमसे कुछ पूछताछ की। गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी पैकेज का ऐलान किया उसमें किसी भी डेली वेजर का कोई फ़ायदा नहीं लगता आज तक। अभी तक जो भी हमने देखा उसमें डेली वेजर का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि हमें ड्राइवर लोग तंग करते हैं कि हम अहदेदारान हैं कि बोलते हैं हमारे घरेलू मसाले बहुत मुश्किल से हम वक्त गुजार रहे हैं इसका जो ये लॉकडाउन का जो मसला है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे से कुछ इमदाद करे, या तो हमें छूट दी जाए कि हम अपना रोज़गार फिर से चलाएं, या तो हम काम पे निकलेंगे, चाहे फिर देखा जाएगा क्या होगा, हम कितना कमाएंगे तो फिर भी हम निकलेंगे काम के लिए। जो भी पैकेज का ऐलान हुआ इसमें अभी तक हमारा कोई नहीं है। हम बोलते ड्राइवर लोग वो आया है कोई पैकेज आया हमारे लिए कुछ होगा उसमें, लेकिन हम अभी तक गए हैं 2-4 जगह गए हैं, उन्होंने कहा कि अभी आपका कोई इसमें कुछ पैकेज का मसला नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, खासकर वी आर रिक्वेस्टेड टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लीज अटेंशन टू ड्राइवर्स एंड कोरोना वायरस ब्रोकुन इन पत ये सियासी समाजी तो मजहबी तंजीमों तरफ कई कदम तुलना आई युद्ध जन लूकन राहत वात तज आज शुमाली कशीर हंदिस पटन इलाकस मज कायम ट्रामा हस्पताल मज अक मुकामी रजाकार तंजीम तरफ जरूरी सामान अमलस मज बगरन आमुत युद्ध जन तम पन फरज खुश असलूबी सान अंजाम दित हेकन। से जो हम जंग लड़ रहे हैं मिलजुल के, इस हवाले से हेल्प फाउंडेशन जे&के रोज़ अव्वल से ही दस्तयाब रही है। हमने महकमा हेल्थ को भी अपना ताउन देने की भरपूर कोशिश की। इस हवाले से आज हमने ज़िला बारामूला के लिए जो मुहिम का आगाज़ किया है, ट्रामा हॉस्पिटल पटन से शुरुआत की है। हम जनूबी कशीर से तोलक थावन वालों भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तरफ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए पार्टी हिंद अहदेदारन सत कत कर्म यथ दौरान मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिनस अलाव भारतीय जनता पार्टी तरफ तुलना आमतन कदमन हज पार्टी जिम्मेदारन जान फराहम करना आई। यल जन अत मौके पे पार्टी लीडरन तो वर्करन जोर दिन आव तम गन लूकन राहत वातनावनस हवाले संजीद कदम तुल। जनता पार्टी के हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और कश्मीर जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी और हमारे इस स्टेट के प्रेसिडेंट यूटी स्टेट के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी और अशोक कौल जी ने पूरे यूटी जम्मू कश्मीर के लीडरों के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और हमें उन्होंने हिदायत दी कि आगे पार्टी की गतिविधि कैसे होगी। और यहाँ पे मेरे साथ मेरे सीनियर लीडर रफ़ीक वानी साहब हैं, जब सुन रहे थे और हमने इस पे बड़ा अमल करना शुरू कर दिया है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि आज पार्टी की मीटिंग थी, पार्टी की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिप्टी मेयरन आज श्रीनगर के मखदूम साहब इलाक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर तह मौजूद दौरस दौरान ये लूको तरफ तिमन दरपेश मुश्किलन हवाले जान फराहम करना आई। तब तमो वोनमुत ये लूकन कयाव रंगो मुश्किल वेतरन पेवान, तब जरूरी लूकन बुथन वोल मुश्किल दूर करने बापत संजीद कदम तुलने। ये जन तमो लूकन यकीन दित तिमन बुथन वोल मुश्किल अन करीब दूर करने। जी मैं आज शहर श्रीनगर के यहाँ मखदूम साहब ज़ियारत देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पे आज हाज़िरी देने के लिए भी आया हूँ और साथ ही मैं शहर श्रीनगर में भी जहाँ पे हमें यहाँ इस इलाके से शिकायतें मौसूल हो रही थी कि यहाँ पे सैनिटेशन का काम पूरी तरह से नहीं हो रहा है, उसका जायज़ा लेने के लिए मैं आज बज़ात खुद आया हूँ। और यहाँ पे लोगों की भी शिकायतें थी कि यहाँ आसपास जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं आस्थान आले से जो ऊपर आते हैं उनसे कुत्ते वुत्ते वगैरह होते हैं, तो मैंने मौके पर ही इंजीनियर साहिबों को बोला है कि इन चीज़ों का एस्टिमेट करके वहाँ पे गेट। एमओ अनंतनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मुकामी सड़कें हज खस्ताहली हवाल कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम आज ताम सड़कें हज शहर पर हवाल कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ मंग करना आमुत सड़कें हज शहर पर हवाल गसन कदम तुल युद्ध जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करने।
मैं इस रोड का यही कहना चाहता हूँ कि रोडों की हालत जो यहाँ पे है वो बहुत ही खस्ता है। गाड़ियों की मैं बात नहीं करूँगा, पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है लोगों को। आप रोड लीजिए डूरू टू काजीगुंड जो यहाँ मंडीपुरा से जाता है, पिछले 2-3 साल से काम चल रहा है, बिल्कुल स्लो हो ही नहीं रहा है। वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्टर है वो वहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे आप इस रोड की बात करेंगे, वेरीनाग टू उमू जो टनल को कनेक्ट करता है, यहाँ से मेन हाईवे को कनेक्ट करता है, यहाँ से बिल्कुल भी गाड़ियाँ ये ड्राइवर्स मान ही नहीं रहे हैं इधर से जाने के लिए। इतना ये बदखस्ता हाल हुआ है रोडों का। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 साल से किसी भी रोड पे कोई भी पिछले 6 साल से यहाँ पे रोडों पे कोई भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी से कि वो जल्द से जल्द इन रोडों का कुछ काम कराए ताकि लोगों को जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, ताकि लोग आराम से फ्रीली फील करें कि वो इस रोड से अगर गाड़ियों में नहीं तो पैदल चल पाए। जो हमारा जो उमू वेरीनाग जो रोड जाता है, जवाहर टनल जो ये रोड जाता है, इसको टोटली जो गवर्नमेंट है इस पर कोई कंसंट्रेशन नहीं है गवर्नमेंट की। ये 5 साल से ऐसे ही रोड है, इसमें कोई मैग्नेमाइजेशन नहीं है, इसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, इसमें पैदल नहीं चल सकता। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।